Hello students. In the last lecture we have studied the uses of microorganisms for the curd formation as well as the alcohol production, and today we will talk about the medicinal uses of microorganisms. Fine. Whenever we falls ill, the doctor prescribes him or her some antibiotics tablet or the capsules or the injections such as of penicillin. Penicillin is the antibiotic. Now you should know what are antibiotic. Anti means against and biotic means living. So the chemicals which act against the disease causing organisms are known as antibiotics. Now question arises, how these antibiotics form? These antibiotics are prepared from the living organisms, and these antibiotics kill or inhibit the growth of other disease causing organisms. That means antibodies बनती भी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही हैं और किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ को किल करती हैं, इनहिबिट करती हैं, लेकिन वो माइक्रोब हमारा डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब होगा. फाइन. सो एंटीबायोटिक्स आर द मेडिसिन्स which stop or kill, or you can say the microbe or disease causing microorganism is known as antibiotic, and the organisms from which these antibiotics are formed, these are like bacteria and fungi. Both of these microorganisms are used for the antibiotic productions. Fine. So antibiotics are produced from the living organisms and acts against the disease causing microorganisms. Fine. There are some of the common antibiotics like streptomycin, tetracycline and erythromycin. These antibiotics have been formed from bacteria as well as from the fungi. Fine. Now antibiotics are effective against the bacterial infection but not against the viral infection. Why? Because bacteria are having their own machinery, but viruses do not have their own machinery. They replicate inside our body by using our machinery. Fine. So antibiotics will kill or inhibit the pathway of bacteria's life. जैसे भी वो अपना रेप्लिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, उसी पाथवे को किल करने का काम एंटीबायोटिक्स करती हैं, जबकि वायरसेस के पास ऐसी कोई मशीनरी है ही नहीं जिसे एंटीबायोटिक्स किल करेंगी. वो तो हमारी ही बॉडी की मशीनरी को यूज़ करेंगे. फाइन. दैट्स वाई एंटीबायोटिक्स आर इफेक्टिव अगेंस्ट द बैक्टीरियल इन्फेक्शन बट नॉट अगेंस्ट द वायरल इन्फेक्शन. फाइन. Now the first non-toxic antibiotic was prepared by a scientist named as Alexander Fleming, and this antibiotic was made from a fungi known as Penicillium notatum. This is a mold, and mold is a fungus. Fine. And the name of antibiotic was penicillin. So antibiotic is penicillin made from a fungus Penicillium notatum. Fine. And antibodies are effective for the crop production or in animal husbandry, means they are used to control many animal disease as well as the plants disease. Fine. There is one more thing about antibiotics, that these must be taken in the prescribed dose. अगर आपने इनकी डोज बहुत ज़्यादा ले ली तो ये हमारे लिए हार्मफुल हो जाएगा, है ना. और आपको बार बार भी एंटीबायोटिक नहीं लेनी है. क्यों नहीं लेनी है? क्योंकि आपको जब भी इन्फेक्शन हुआ और आपने एंटीबायोटिक ली तो जो आपकी बॉडी में डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब एंटर कर चुका है वो इस एंटीबायोटिक को अपना फ्रेंड बना लेगा. मतलब वो पहचान जाएगा कि ये वही एंटीबायोटिक है जो मुझे किल करने के लिए आई है.
तो वो पहले ही सावधान हो जाएगा और अपनी लाइफ में चेंजेस कर लेगा, मतलब वो बैक्टीरिया इस एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट हो जाएगा, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा उस एंटीबायोटिक का अगर आप उसे बार बार लोगे। तो एंटीबायोटिक को ना ही तो आपको हमेशा लेना है या बार बार यूज़ करना है, और अगर यूज़ करते भी हो तो उसकी जो पर्टिकुलर डोज है हमें वही रखनी है। फाइन। नाउ नेक्स्ट इज द वैक्सीन। फाइन। बिफोर स्टार्टिंग विद द वैक्सीन, दैट व्हाट आर वैक्सीन्स एक्चुअली, मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। ओके। जब भी हमारी बॉडी में कोई भी डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब एंटर करता है तो हमारी बॉडी उससे लड़ने के लिए हमेशा एंटीबॉडीज़ बनाती है। एंटी मीन्स अगेंस्ट, ये एंटीबायोटिक्स नहीं है, एंटीबायोटिक्स तो केमिकल्स होते हैं, ये क्या है, एंटीबॉडीज़ हैं, ये हमारी ही बॉडी में प्रोड्यूस होती हैं। माइक्रोब हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट कुछ प्रोटीन्स बनाती हैं जिन्हें हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं। फाइन। लेकिन एंटीबॉडीज़ बनने में 10 से 15 डेज़ लगते हैं। तो अगर ये माइक्रोब फर्स्ट टाइम आपकी बॉडी में एंटर करेगा तो आपकी बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाएगी, लेकिन उसमें तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा, तब तक तो ये माइक्रोब हमारी बॉडी को डैमेज कर चुका होगा। इस सिचुएशन में हम लोग मेडिसिन खाते हैं। लेकिन हमारी बॉडी की एक और चीज़ है कि अगर वही माइक्रोब सेकंड टाइम आपकी बॉडी में आता है तो आपकी बॉडी उसे पहचान लेती है कि ये वही माइक्रोब है जो बहुत पहले आया था, और हमारी बॉडी ने पहले से ही एंटीबॉडीज़ बना के रखी हैं। एंटीबॉडीज़ कभी भी डैमेज नहीं होंगी, आपकी बॉडी में वो रहेंगी। जब भी सेम पैथोजन आपकी बॉडी में दोबारा आएगा तो जो एंटीबॉडीज़ पहले से बनी हुई थी वो एंटीबॉडीज़ इस माइक्रोब के खिलाफ काम करेंगी और इसे आपकी बॉडी से भगा देंगी। मतलब जब फर्स्ट अटैक होगा तब तो क्योंकि एंटीबॉडीज़ बनने में टाइम लगेगा, लेकिन ड्यूरिंग सेकंड अटैक तो पहले से ही एंटीबॉडीज़ बनी हुई हैं, तो बनी बनाई हमारे पास क्या है, एंटीबॉडीज़ हैं। एज अ रिजल्ट दीज एंटीबॉडीज़ विल किल द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स। हमारी बॉडी की इसी पावर को ध्यान में रखकर वैक्सीन बनाई जाती हैं। वैक्सीन क्या है, ये जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब है जो अभी मेरी बॉडी में एंटर नहीं किया है, पहले ही डॉक्टर्स क्या करते हैं, इस माइक्रोब का वीक या इसका डेड पोर्शन हमारी बॉडी के अंदर डाल देते हैं। एज द रिज़ल्ट मेरी बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाएगी, है ना। लेकिन ये तो डेड माइक्रोब था, है ना। सो डेड माइक्रोब तो मुझे हार्म नहीं पहुँचाएगा, तो मेरी बॉडी ने एंटीबॉडीज़ तो बना ली। अब कभी फ्यूचर में अगर ऐसा हो कि सचमुच ये माइक्रोब मेरी बॉडी में एंटर करेगा तो मेरी बॉडी के पास तो बनी बनाई एंटीबॉडीज़ हैं, वो इस माइक्रोब को किल कर देगी। फाइन। लेट्स रिवाइज। वैक्सीन्स आर द वीक और डेड माइक्रोब्स which when entered in our body then our body produced antibodies against them। मतलब माइक्रोब ने एंटर नहीं किया है आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी में पहले से ही हमने क्या किया, सपोज स्मॉल पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स एक वायरल डिजीज़ है, हमने क्या किया, स्मॉल पॉक्स वायरस का वीक और डेड पोर्शन आपकी बॉडी में इंसर्ट कर दिया, तो ये आपको डैमेज तो पहुंचा ही नहीं सकता, है ना। सिर्फ आपकी बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाएगी। अब कभी फ्यूचर में सचमुच अगर ये आपकी बॉडी को अटैक करेगा तो बॉडी के पास ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ हैं और ये इसे किल कर देंगी। फाइन। सो दिस इज़ हाउ द वैक्सीन्स आर फॉर्म्ड एंड हाउ आवर इम्यून सिस्टम वर्क्स। ओके। एंड द फर्स्ट वैक्सीन for the smallpox was developed by a scientist known as Edward Jenner। मतलब सबसे पहले जो वैक्सीन थी वो बनी थी स्मॉल पॉक्स के लिए। फाइन। और ये डिस्कवर्ड की थी साइंटिस्ट जेनर ने, और एडवर्ड जेनर को फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी बोला जाता है। इम्यूनोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम, हमारे सिस्टम को आइडेंटिफाई करना कि हमारा सिस्टम कैसे काम करता है। ओके। एंड वेरियस डिजीज़ लाइक पोलियो, कोलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, हेपेटाइटिस एट्सेट्रा ऑल कैन बी प्रिवेंटेड थ्रू
वैक्सीनेशन, क्योंकि इन सब की वैक्सीन बन चुकी है। अब इन सब की वैक्सीन कैसे बनी होगी? सपोज़ पोलियो को इन्फेक्ट करने वाला या पोलियो कोज करने वाला जो वायरस होगा, उसका डेड या वीक पोर्शन पहले से ही हमारी बॉडी में इंसर्ट कर दिया जाएगा, हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाएगी। फिर अगर सच में पोलियो कोजिंग वायरस आपकी बॉडी में एंटर करेगा तो आपकी रेडीमेड एंटीबॉडीज़ जो आपने पहले ही बना ली थी वो वायरस को किल कर देंगी और आपको डिजीज़ नहीं होगी। फाइन, दिस वॉज ऑल अबाउट द मेडिसिनल यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट यूज इज microorganisms helps in increasing the soil fertility. Fine. There are some bacteria which are present in the soil like rhizobium and blue-green algae. They are able to fix the atmospheric nitrogen, or you can say that plants cannot use the atmospheric nitrogen directly. First, the nitrogen is converted into the useful form, and these bacteria are able to convert the atmospheric nitrogen into the form which will be utilized by the plant. That means we can say both of these enrich the soil with nitrogen and increase the fertility of the soil. Fine. Now next is the commensals. We know very well that some microorganisms live inside our body and they helps in the certain processes of our body system, like some bacteria live in the gastrointestinal tract. Gastro means the stomach, intestinal means intestine. हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन में बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। सो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारी ही बॉडी में रहें और हमें बेनिफिट पहुँचाएँ, दे आर नोन एज द commensals. The organisms which reside in our body and provide the beneficial uses to us are known as commensals. And last is cleaning the environment. Microorganisms also help in cleaning the environment. How? Because they decompose the dead organic matter into the simple substances, or what we call it, helps in the preparation of compost. Even some aerobic bacteria are also there which helps in the sewage treatment and decompose the waste organic matter. Fine. So this was all about our today's topic, the uses of microorganisms for us.